السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وہیں پر ایک اہم بات ہے حفظ قرآن کو آسان بنانے کے لیے کہ ایک دوسرے کا سپورٹ کیجیے۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو آپ ڈیگریڈ مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا میرے 2 پارے ہو گئے، نظر انداز کر دیں گے، سن کر بھی انسنی کر دیں گے۔ آپ کا نظر انداز کرنا، آپ کا انسنی کرنا بچے پر بہت شاخ گزرتا ہے، بچی پر بہت شاخ گزرتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے پہ مسکان آئے، ماں باپ اگر خوش ہو، ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کے مسکان سے اللہ اکبر بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ آج ماں باپ کو سبحان اللہ صرف مارنا آتا ہے، ڈانٹنا آتا ہے، جھڑکنا آتا ہے، معاف کرنا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے اس میں۔ آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے، آج صرف غلطیاں ڈھونڈتے اپنے بچوں میں، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں نا ہم اسے نظر انداز کر دیتے۔ واللہ ماں باپ کا ایک جملہ، استاذ کا ایک جملہ بچے کو کھڑا کر دے گا، بچے کے مستقبل کو بنا دے گا، اس کے حوصلوں کو بڑھا دے گا، کامیاب طالب علم بنائے گا۔ ماں باپ اور استاذ کا ایک جملہ۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک موٹیویشن کا ماحول میں اساتذہ سے بھی اپیل کروں گا، اساتذہ قابل احترام حضرات و خواتین۔ تو 7th پوائنٹ یہ ہے کہ سپورٹ کرنا ایک دوسرے کو، ہر ایک کی آرزو ہے۔ اب چل کر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لیں، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت پڑھتے چلیں، یاد کرتے چلیں، اور اس روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت، یہ کرنا بہت مشکل ہے، نہیں، یو کین ڈو۔ اور حشر کی عدالت میں اپنی زندگی سے یو کانٹ ڈو ڈیلیٹ کیجئے، گرچہ وہ ہماری ڈکشنری میں ہو۔ ہماری زندگی کے ڈکشنری میں یو کانٹ ڈو نہیں ہونا چاہیے، یو کین ڈو ہونا چاہیے۔ اور آئی کین ڈو، یو کین ڈو، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ جب تک ایسا ماحول قائم نہیں کریں گے نا، حفظ میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم۔ اور ایک اہم بات، نمبر 8، حفظ دونوں پہ فوکس کرنا۔ آپ بعض طلبہ جو ہے نئے سبق میں ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کرتے، روزانہ جو ہے 4 پیج 5 پیج ریویژن، بالکل صفر، بالکل غلط ہے یہ۔ کیونکہ ابتدائی مرحلے میں بہت آپ کو محنت کرنی ہے، نئے سبق میں بھی اور پرانے سبق میں بھی، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ میں ہمیشہ جو ہے اس کو ایک مارک دیتا ہوں میں کہ آپ 60% نئے سبق پہ توجہ دیجئے اور 40% جو ہے ریویژن پہ توجہ دیجئے۔ آپ کی محنت 2 حصوں میں تقسیم ہونا، محنت کا 60% نئے سبق پر اور محنت کا 40% جو ہے ریویژن پہ ہونا چاہیے۔ آپ اسے نوٹ کر کے دیکھو آپ، کیونکہ بعض طلبہ کیا ہے، گھبرا کر کیا کرتے، 5 پارے پڑھ کر خالی ریویژن کرتے رہتے۔ نقصان کیا ہوتا ان کا؟ اللہ ہر کسی کو قرآن کے قریب ہونے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ہر کسی کو اس قرآن مجید دل میں بسانے کی توفیق نہیں دیتا۔ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں جس پہ اللہ کا احسان ہو، جس پر اللہ کا کرم ہو، جس پر اللہ کی خاص نظر ہو، جو بندہ راہ راست پہ قائم ہو، جو بندہ راہ ہدایت پہ قائم ہو، اللہ اسی کو یہ موقع دیتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو معزز طلبہ اور طالبات، اگر آپ قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں نا، سمجھ لینا کہ آپ ہدایت پہ آ گئے، توفیق مل گئی آپ کو، آپ عظیم راستے پہ قدم رکھنے جا رہے ہیں، آپ عظیم راستے پہ قدم رکھنے جا رہے ہیں۔
बड़ा अजीम रास्ता है ये, बड़ी अजीम राह है ये, अल्लाह को राजी करने वाला रास्ता है ये, आपकी जन्नत को संवारने वाला रास्ता है ये, आपकी सोच को निखारने वाला रास्ता है ये, आपके दिल को मुनव्वर करने वाला रास्ता है ये, आपके घरों में बरकतों के दरवाजों को खोलने वाला रास्ता है ये, आपकी जिंदगी से उलझनों का खातिमा करने वाला रास्ता है ये, आपको अल्लाह से करीब करने वाला रास्ता है ये, आपकी बिगड़ी दुनिया को आबाद करने वाला रास्ता है ये, आपको गुनाहों से बचाने वाला रास्ता है ये, आपके दिल में नेकियों की अजमत और मोहब्बत और लज्जत को बिठाने वाला रास्ता है ये, नबी का रास्ता है, सहाबा का रास्ता है, ताबीन अतबाउ ताबीन का रास्ता है। ऐसे अजीम रास्ते पे आप चलने जा रहे हैं। कितना अजीम रास्ता है अभी आपने सुना। इस राह पे चलने वाला बड़ा अजीम होता है, इस राह पे चलने वाला बहुत मुबारक होता है। इस अजमत को पाने तुम जा रहे हो, इस बरकत को तुम पाने जा रहे हो, इस रहमत को तुम पाने जा रहे हो, अल्लाह की इस नेमत को तुम पाने जा रहे हो। जहनी तौर पर तैयार हो जाना, दिली तौर पे तैयार हो जाना, अपने माहौल को तैयार कर लेना कुरान के लिए, ताकि आप इस मैदान में कामयाब हो जाएं। ये रास्ता जितना अजीम है ना, ये रास्ता जितना अजीम है ना, उतनी ही आपसे अजीम कुर्बानी ये रास्ता चाहता है। सबसे पहली नसीहत, कुरान याद करने के हवाले से गौर से सुनना। अपने दिल में इखलास पैदा करें, मुखलिस बनिए, हाफिज बन जाएंगे आप। अल्लाह के लिए पढ़िए, अल्लाह अपनी किताब आपके दिल में उतार देंगे। अल्लाह के लिए आगे बढ़िए, इस रास्ते की रुकावटें अल्लाह खत्म कर देंगे। इखलास अपनाना, ए कुरान पढ़ने वालों, इखलास अपनाना। इखलास कीमती मता है, इखलास कीमती जेवर है, इखलास अजीम तोहफा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, क्योंकि बास तलबा और तालिबात कुरान क्यों पढ़ते मालूम? सिर्फ लोगों के पास नाम कमाने के लिए, अपना नाम और अपनी पहचान बनाने के लिए। डरिए मत। एक बात मैं कहता हूं, जहन में नोट कीजिए, आप नाम और पहचान के लिए मत पढ़िए, पढ़िए, आपका नाम रोशन होगा। पढ़िए, आपकी पहचान बनेगी। पढ़िए, आप तारीख बनाएंगे। पढ़िए, आप अल्लाह से करीब होंगे। पहले से हमारा ज़हन खराब होता है, इसलिए बास तलबा देखो, सिर्फ नाम के लिए पढ़ते। हाफिज बन गए, सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद जानते क्या आफत आती? गौर से सुनिए, जो नाम के लिए पढ़ते, आफत क्या आती जानते? अल्लाह ताला हिफ्ज कुरान के बाद रिवीजन की तौफीक नहीं देते। कितने ऐसे हुफ्फाज जो कुरान का सफर तय किए, कुरान के साथ नहीं जुड़े, कुरान का सफर किए, कुरान के साथ जुड़ने की, कुरान पर मर मिटने की तौफीक नहीं मिली। ये बहुत बड़ी आफत है। और जानते हैं इसके कई रीजंस हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? पढ़ते हुए सर्टिफिकेट के लिए पढ़ना, पढ़ते हुए टाइटल के लिए पढ़ना, पढ़ते हुए नामो नमूद के लिए पढ़ना, पढ़ते हुए तारीफ हासिल करने, वाह वाह हासिल करने, शोहरत पाने के लिए पढ़ना नहीं। इखलास की बरकत से आप महरूम होंगे,
تو آپ دیر پا بھلائی سے محروم ہو جائیں گے. آپ اخلاص اولین شرط ہے اس عظیم راستے کے لیے. اسی لیے آپ قرآن کو آسانی سے یاد کرنا چاہتے نا, اپنے دل کو اخلاص سے آباد کیجیے. اور مخلص بندہ جو ہے, اللہ اکبر, ہر حال میں اللہ کی کتاب سے جڑتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں اپنے آپ کو کتاب کے حوالے کرتا ہے. کیوں؟ دل میں اخلاص کی برکت ہے, دل میں اخلاص کا نور روشن ہے. نہیں اسی یہ لیے والی میں سب آپ نے کو اپیل یہی کروں گا. سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے. دوسری نصیحت غور سے سنیے, واللہ قرآن بہت آسان ہے. پڑھے شوق ہونا آپ کے پاس, انٹرسٹ, غیر معمولی شوق ہونا. واللہ اس شوق سے آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے. آپ اپنے شوق میں آپ سچے رہیے, آپ سچا شوق پیدا کیجیے. وقتی شوق نہیں ہونا. کبھی کبھار کسی کو دیکھ کر آپ جو ہے امپریس ہوتے اور وہاں وقتی طور پر ایک شوق پیدا ہوتا, لیکن ہمیشہ باقی نہیں رہتا وہ شوق. شوق کیسا رہنا؟ آپ کی زندگی کا حصہ بن جانا, آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جانا, آپ کو دیکھ کر لوگوں کو قرآن یاد آنا, ایسا بننا. آپ شوق سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے آپ. اور شوق کے ساتھ محنت بھی ہونا. نمبر 3, یہ دو بڑی عظیم نعمتیں, شوق بھی ہے محنت بھی ہے. بعض لوگ محنت کرتے انٹرسٹ کے بغیر, بعض لوگ شوق رکھتے محنت نہیں کرتے. یہ دو کلیدی رول ہیں, ایک محنت اور ایک شوق. کامیابی کے دو اہم چابیاں ہیں. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, شوق بھی ہونا, محنت بھی کرنا. آپ بعض اللہ کے بندے دیکھو بہت بڑا انسان بننا چاہتے. آپ کسی طالب علم سے پوچھوں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی, آپ کیا بننا چاہتے ہیں میرے بھائی فیوچر میں؟ مولانا میں بہت بڑا انسان بنوں گا, میں عبد الکلام کی طرح بنوں گا, میں ابو الکلام کی طرح بنوں گا, میں فلاں جو ہے سائنٹسٹ کی طرح بنوں گا, میں فلاں بڑے امام کی طرح بنوں گا. بڑے حسین شوق ہیں آپ کے, بڑے زبردست آرزو ہیں آپ کے. چلیے, اتنا بڑا انسان بننے کے لیے آپ کی کیا کوشش ہے؟ دعا کیجیے کوشش کرنے کے لیے. نہیں اللہ کے بندو, کامیاب لوگ آنکھ بند کر کے خواب نہیں دیکھتے, کچھ کر گزرنے والے آنکھ بند کر کے خواب نہیں دیکھتے. آپ کو کچھ کرنا ہے, آنکھیں کھلی رکھ کر آگے بڑھنا ہے. آپ تب آپ کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے, آپ کے حسین خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے جب آپ میدان میں قدم رکھیں. حافظ بننا چاہتے ہیں, حافظہ بننا چاہتے ہیں, صرف خواب نہیں دیکھنا, خواہش پہ اکتفا نہیں کرنا. خواہش کے ساتھ, خواب کے ساتھ, شوق کے ساتھ محنت کا لگام مضبوطی سے پکڑنا. محنت کا لگام مضبوطی سے پکڑنا. محنت محنت محنت. محنت سے سب کچھ پا سکتے آپ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, رب کہہ رہا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. شوق اور محنت جمع ہے, واللہ العظیم آپ حافظہ بن سکتے ہیں, بآسانی بن سکتے ہیں. آپ ہمارے خاندان میں ایک حافظ ہیں جو 7.5-8 سال میں حافظ ہوئے. کہا تھا, میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے حافظ بننا ہے, تو میرے والدہ کے ذہن میں یہ بات تھی, انہوں نے ہمارے رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ 8 سال کے قریب کی مدت گزار دی حافظ بننے کے لیے, اور پارٹ ٹائم نہیں, 24 آورس مدرسے میں حفظ پڑھنا ہے, لیکن 8 سال میں حافظ بنے. کئی مدرسوں کا پانی پیے اور پلائے.
मेरी वालिदा के जहन में बात बैठ गई, हाफिज बनना लोहे के चने चबाने के बराबर है। हाफिज बनना लोहे के चने चबाने के बराबर है। हम स्कूल पढ़ रहे थे, माफ कीजिए मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, ये वाकया मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए बयान कर रहा हूं। वल्लाही कोई और मकसद नहीं है हमारा। अल्लाह ताला जो है हमें इखलास अता फरमाए, हमें आगे बढ़ाए। जब मैं स्कूल पढ़ रहा था, अपनी वालिदा से अचानक दरमियान में कहा कि मुझे हाफिज बनना है। मेरी वालिदा ने कहा कि जाफर तुम हाफिज नहीं बन सकते। मैंने कहा कि नहीं अम्मी मुझे बनना है। वल्लाही मुझे ये पता नहीं था कि हाफिज कैसे बनते हैं। पता नहीं अल्लाह ने मेरे ज़हन में गैर मामूली एक शौक डाल दिया। मैं समझ रहा था कि हाफिज बनने का मतलब मदरसे में खड़े होकर एक रुकू याद करना और बैठ के सुनाना, फिर खड़े होकर एक रुकू याद करना, फिर बैठ के सुनाना। मेरे ज़हन में बस यही एक तस्वुर था हाफिज बनने का मतलब। और अपनी वालिदा से मैंने जिक्र किया, तो वालिदा ने कहा कि नहीं, आप स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कीजिए। 7th पढ़ रहा था मैं, 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। तो फिर मैंने अपनी वालिदा से, पता नहीं क्या जिद आई मेरे अंदर, मैंने अपनी वालिदा से इसरार किया कि नहीं अम्मी मुझे मदरसा भेजिए, मैं जो है हाफिज बनूंगा। तो वालिदा मुझे डराने लगी, धमकाने लगी। अल्लाह वालिदा को सेहत दे, सलामत रखे, क्योंकि वो भी मेरा मुस्तकबिल चाह रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से अपने एक अजीज और करीब को देखा। 8 साल बहुत परेशान रहे हाफिज बनने में। वालिदा है, बच्चे की फिक्र होती है, कहीं बच्चा जाए ना हो जाए, कहीं बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए, इस फिक्र में वो रोक रही थी। लेकिन मेरे अंदर जो जिद देखो, अपनी मेरी वालिदा ने कहा कि जाफर तुम हाफिज नहीं बन सकते, और उन्होंने डराते हुए कहा कि तुम्हें मदरसे में तन्हा रहना है मुझे छोड़कर। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है। कहा कि मदरसे में तुम्हें मुकम्मल बाल निकालना है, टखला कराना है। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है। मेरी वालिदा ने कहा कि मदरसे में तुम्हें पैंट शर्ट पहनने की इजाजत नहीं देंगे, तुम्हें जुब्बा पैजामा पहनना है। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है। वालिदा ने कहा कि मदरसे में फजर में तुम्हें नाश्ते में रोटी नहीं मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी, चावल मिलेगा, क्या चलेगा? मैंने कहा कि मुझे मंजूर है। वल्लाही क्या पता था मुझे, सुबहान अल्लाह, उस जहन में अल्लाह ताला ने एक ऐसा जुनून डाला था कि मुझे बस हाफिज बनना है। वालिदा ने इसरार को देखा, मजबूर हो गई। मेरे इसरार के आगे मेरी वालिदा सुबहान अल्लाह मजबूर हो गई, और वो जाके मुझे मदरसा में उन्होंने दाखिल करवा दिया। अल्लाह गवाह है मुअज़्ज़ज़ तालिबात, मुअज़्ज़ज़ तलबा, हज़रात ख़वातीन, अल्लाह गवाह है। ऐ अल्लाह तेरा करम है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वल्लाही मदरसे में कदम रखने के बाद पूरे मदरसे की तारीख को हमने बदल दिया। 1 साल में 25 से जायद पारे, 25.5 पारे मैंने याद कर लिए, और पूरे मदरसे में सुबहान अल्लाह एक हलचल मच गई कि जाफर अभी आए, सुबहान अल्लाह, हर महीना 3 पारे, 3.5 पारे, 4 पारे। अल्लाह मेरे हाफिज साहब को जज़ाए खैर दे। जब मैं सबक लेने की बारी आती, तो मैं 5 पेज लेने की कोशिश करता, तो मेरे हाफिज साहब कहते कि 5 पेज क्यों जाफर, और 2 बढ़ाओ। तो 7 पेज जो है रोजाना याद कर सादत। और मैं आपको बताऊं मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, हजरात ख़वातीन, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। 1 साल 1.5 से 2 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ का मरहला हमने तय कर दिया। इससे कम मरहले में भी हाफिज बनने वाले हैं, लेकिन अपना वाकया हम इसलिए आपके सामने बयान कर रहे हैं। अगर सच्चा शौक हो, सच्ची तड़प हो, अच्छी जो है आपने मेहनत की, वल्लाह ये सफर बहुत आसान है। लोगों को एहसास हुआ हाफिज बनना बहुत आसान है, लोग बहुत मुश्किल समझते हैं। ये मेरे और आपके रब का ऐलान है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने कुरान के हवाले से कहा, हमने इस कुरान को आसान बना के नाजिल किया है। जानते हैं, अल्लाह अकबर, सच्चा शौक और सच्ची मेहनत से आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। आप लोग आपको बहुत कुन जहन समझते, आपको ज़हीन नहीं समझते। कुरान की बरकत से ज़हीन बनेंगे आप, कुरान के बरकत से होशियार बनेंगे आप, कुरान की बरकत से समझदार बनेंगे आप।
قرآن کی برکت سے دنیا کو دینے کے قابل بنیں گے آپ. قرآن کی برکت سے گھر کے ماحول کو منور کریں گے آپ. قرآن کی برکت سے آپ ایک انقلابی تاریخ کو بنانے میں کامیاب ہوں گے آپ. اس لیے آپ مایوس نہیں ہونا. آپ ہمارا چوتھا میسج، پہلا میسج اخلاص، دوسرا میسج شوق، معاف کرنا سچا شوق، تیسرا میسج سچی لگن، اچھی محنت، اچھی تڑپ، نمبر 4 مایوس نہیں ہونا. آپ ٹرائی اگین. یاد رکھو آپ ہمیشہ اصول یہ، آج آپ محنت کر رہے ہیں، محنت رنگ نہیں لا رہی ہے. کل محنت کر رہے ہیں، محنت رنگ نہیں لا رہی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی. آپ کامیاب ہوں گے، آپ روشن ہوں گے، آپ سب پہ فوقیت پائیں گے، آپ تاریخ بنائیں گے، آپ حفظ قرآن مکمل کریں گے. یہ حوصلہ ہونا آپ کے پاس. مایوس واللہ مت ہو جائیے آپ. آج بڑا پرابلم کیا ہے معلوم؟ ہم مسلمانوں کا بہت جلد مایوس ہو جاتے ہم. آپ ایز اے ذمہ دار بچوں سے مایوس مت ہو جائیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ایجوکیشن سے مایوس مت ہو جائیے، ترقی سے مایوس مت ہو جائیے. آپ کے بچوں کو کامیابی ملے گی. آپ معزز طلبہ، معزز طالبات ضرور ترقی کریں گے انشاءاللہ. کامیاب صبح کا انتظار کیجیے، روشن صبح کا انتظار کیجیے. وہ آپ کی زندگی میں کل ہی نمودار ہو سکتی ہے. وہ آپ کی زندگی میں کل ہی نمودار ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ امید کا دامن تھامے رکھنا. یہی امید کا دامن تھامے رکھنے والے ہر میدان میں کامیاب ہوتے، ہر جگہ کامیاب ہوتے، اور ہر ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. اسی لیے آپ مایوس نہیں ہونا. نمبر 4. نمبر 5 اخلاص ہے، شوق ہے، محنت ہے، امید کی کرن بھی باقی ہے، لیکن صحیح وقت کا انتخاب کر رہے ہیں آپ. حفظ کے لیے یاد رکھو، صحیح وقت کا انتخاب کرنا. معاف کرنا کہ اصل تو ورکشاپ میں میرے پاس ایک پروجیکٹر ہونا چاہیے. میں آپ کو اسکرین پہ بتاتا. میں معذرت کے ساتھ وہ یعنی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسی زبانی کہہ رہا ہوں. آپ نوٹ کیجئے، آپ نوٹ کیجئے معزز طلبہ اور طالبات. حالانکہ ورکشاپ میں کیا ہونا چاہیے، میں بورڈ پہ سمجھاؤں یا اسکرین پہ آپ کو کچھ شو کروں. لیکن معاف کرنا، ہمیں امید ہے کہ ہمارے دل سے جو بات نکل رہی ہے آپ کے دلوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. کیا پتا کہ یہاں 72 یہاں مشارک ہیں، کیا پتا کہ 72 کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت اور عظمت پیدا ہو جائے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ 70 لوگ حافظ بنیں گے انشاءاللہ. 70 لوگ حافظ بنیں گے انشاءاللہ. بس آپ کے پاس جو ہم بتا رہے ہیں وہ سب ذہن میں رکھنا انشاءاللہ. تو اخلاص ہونا، شوق ہونا، سچی تڑپ ہونا، امید کے ساتھ جینا. نمبر 5 مناسب وقت کا انتخاب کرنا. ہمارے پاس کیا ہے، بہت تھک جاتے آپ تب قرآن لے کر بیٹھتے آپ. نہیں، میں کہوں گا خود پہ ظلم کر رہے ہیں آپ. یاد رکھو، آپ پڑھائی کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پڑھائی کے لیے ٹاپ ٹو باٹم آپ تیار رہنا، سر تا پا آپ تیار رہنا پڑھائی کے لیے. آپ کا پورا ہوش، آپ کا پورا جوش، آپ کی پوری توجہ پڑھائی پہ ہونا، تبھی پڑھائی فائدہ مند ہوتی ہے. کبھی کبھار کیا ہے، ہم کتاب لے کے بیٹھتے، ذہن ساتھ نہیں دیتا، دماغ ساتھ نہیں دیتا، آپ کی نگاہ ساتھ نہیں دیتی، آپ کے کان ساتھ نہیں دیتے، آپ کی زبان ساتھ نہیں دیتی، آپ کا دل ساتھ نہیں دیتا. بند کر دو تھوڑی دیر. پہلے سب کو آپ کنٹرول میں لاؤ، پورے پارٹس آف دی باڈی کو کنٹرول میں لاؤ. لا لیا نا آپ نے، پڑھائی کرو.
थोड़ी देर की पढ़ाई भी फायदेमंद होगी। बास तलबा के पास पढ़ाई का ढंग ही नहीं होता है। यानी मेहनत कैसे करते हैं? ऐसी मेहनत करते हैं जो फायदा नहीं देती है। उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या? सही वक्त का इंतखाब नहीं। बेजारगी के वक्त में बैठ के पढ़ते आप। और जब फ्रेश रहते, कहां रहते आप? जब फ्रेश रहते ना, बहुत ताजा दम होके रहते आप, या तो आप टीवी देखते, या मोबाइल देखते, या फ्री रहते आप। जब थक जाते आप, तब आप कुरान याद करते आप? नहीं, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। बल्कि पढ़ते 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 अगर आपका मन थोड़ा उसके अंदर बेजारगी आए, बंद कर दो आप। थोड़ा जहन को फ्री करो आप। फ्री माइंड से आप सोचो कुछ, उठ के जाओ, कुछ वॉकिंग करो, कुछ पानी पियो, अपने माइंड को बदलो। फिर आपको एहसास होना, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सुस्ती चली गई, सुस्ती की चादर निकल गई, तो फिर मेहनत की चादर ओढ़ो, आकर बैठ जाओ। अल्लाह के वास्ते सुस्ती की चादर के साथ पढ़ाई नहीं करना, हिफ्ज नहीं करना। नुकसान क्या होगा? कभी कभार आप कुरान से बेजार हो जाएंगे, माफ करना, कुरान से बेजार हो जाएंगे आप। ऐसा ही हुआ है बाज लोगों को। उनको नहीं मालूम, वो सुस्ती की चादर ने नफरत का रास्ता दिखा दिया। सुस्ती की चादर ने मायूसी का रास्ता दिखा दिया। सुस्ती की चादर ने ना उम्मीदी का रास्ता दिखा दिया। सुस्ती की चादर ने आपके हौसलों को पस्त कर दिया। हमेशा हम चादर ओढ़ना, वो मेहनत की चादर रहना। मेहनत की चादर के साथ जियो, जीने का मजा आता है। हमारे असलाफ ऐसे ही थे। असलाफ जो तारीख बनाए, उस तारीख के पीछे उनकी मेहनत की चादर है। अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह की नियामत है, अल्लाह की तौफीक है, साथ में उनकी मेहनत की चादर है। कौन दुनिया को देते हैं? ऐसी ही कौम देती है जो बहुत हार्ड वर्किंग। हमारी पहचान है। आज माफ करना, दुश्मन ने से इख्तियार कर लिया। आप यूरोपीय ममालिक में देखिए, आज वो दुनिया को देने की पोजीशन में है। आप बहुत सारी चीजें जो घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी देन है। माफ करना, हमारी मीरास थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ऐसा नहीं होता है। असलाफ, उनकी जिंदगी मेहनत से इबारत थी। इसलिए आज हम नाइंसाफी करते ना, फ्रेश रहे तो दोस्ती का सर्कल याद आता, फ्रेश रहे तो क्रिकेट याद आता आपको, फ्रेश रहे आपको सोशल मीडिया याद आता, थक जाए पढ़ाई याद आती, थक जाए आपको कुरान याद आता। तो फिर कैसे इंटरेस्ट पैदा होगा आपको? मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? सही वक्त का इंतखाब, और उस सही और मुनासिब वक्त में आप भी बिल्कुल परफेक्ट रहना, तैयार रहना आप। चलिए, यहां बास तलबा क्या होते? मौलाना, हम कभी तैयार ही नहीं होते। ऐसा भी होता है ना, मौलाना मेरे जहन तैयार ही नहीं होता। तैयार कीजिए ना, आप खुद को तैयार कीजिए ना। अपने सामने हुफ्फाज को देखिए, अपने सामने कामयाब लोगों को देखिए, उनकी तारीख को पढ़िए, आपके अंदर भी हौसला पैदा होगा। और हमारे अंदर एक हमारा एक मिजाज है, मैं आपको बताता हूं। वो क्या है मिजाज मालूम? लोग जिसे नामुमकिन समझते, मेरा ज़हन वहां काम करता है। नहीं, मैं इसे मुमकिन करके दिखाऊंगा। क्यों? कामयाब होना मुश्किल है क्या? टॉपर आना मुश्किल है क्या? ये प्लस आना मुश्किल है क्या? वल्लाही आप ताज्जुब करेंगे, मदीना यूनिवर्सिटी में हमारे असातिज़ा उमराबाद में जिक्र करते थे कि सुबहान अल्लाह, यानी मदीना यूनिवर्सिटी में तमाम सब्जेक्ट्स में यानी 100 लेना बहुत मुश्किल होता है। मैंने यहीं पर सोच लिया, अगर मदीने में मुझे पढ़ाई का मौका मिले तो मैं जरूर लेकर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अपने सेमिस्टर्स जो वहां गुजरे जामिया इस्लामिया मदीना में, अल्लाह ताला का करम है। ये मैंने कहा ना, ये बस आपको हौसला दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे 8 सब्जेक्ट्स होते, 9 सब्जेक्ट्स होते, तो मेरे 8 सब्जेक्ट्स में भी 100 अल्हम्दुलिल्लाह होते। मेरे अंदर एक जुनून, जब कहते हैं कि लोग ये नहीं कर सकते, मेरे अंदर वहां पर जहन बनता कि नहीं कर सकते हम।
क्यों नहीं कर सकते? ऐ अल्लाह तुझ पर भरोसा है, ऐ अल्लाह तुझ पे भरोसा है, तू जरूर रास्ता मेरे लिए खोल दे, मेरे सीने को इल्म के लिए खोल दे, मेरे दिमाग को इल्म के लिए खोल दे। जब अल्लाह से मांगेंगे ना, अल्लाह ताला इल्म के रास्ते भी आपके लिए खोल देंगे, इल्म के रास्ते आपके लिए खोल देंगे, इल्म के सितारे बन जाएंगे इंशाल्लाह। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम? आज लोग घबराते तो हम डर जाते, लोग परेशान करते तो हम परेशान हो जाते। नहीं, आप परेशान होने वाली कौम नहीं है, आप घबराने वाली कौम नहीं है, आप मायूस होने वाली कौम नहीं है, आप उम्मीद के साथ जीने वाली कौम है, आप गिरतों को थामने वाली कौम है, आप मायूस को उम्मीद का सबक पढ़ाने वाली कौम है, आप एक इंसान जो जिंदगी से मायूस हो चुका उसको जिंदगी देने वाली कौम है। आप घबरा जाएं। आजकल लोग होते हमारी सोसाइटी में डराते, अच्छा हाफिजा बनते तुम, नको हाफिजा मत बनो, हाफिजा बनेंगे तो भूल जाएंगे, भूलेंगे तो अल्लाह का अजाब होगा। अब यहां हमारी बच्चियां डर जाती, मौलाना हम हाफिजा नहीं बनते। क्यों? क्यों हाफिजा नहीं बनते? नहीं, लोग कहते हैं कि अगर हाफिजा बनकर भूल जाएंगे ना तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, हम अल्लाह के अजाब की जद में आ जाएंगे। मैं आपसे कहूं ना, ये नेगेटिव सोच क्यों? अभी मुकम्मल करने से पहले भूलने का इरादा क्यों? आप कामयाबी में नाकामी तलाश करते, आप कामयाबी में नाकामी तलाश करते, आप रोशनी में तारीकी ढूंढते, आप नूर में तारीकी ढूंढते, आप उम्मीद में मायूसी ढूंढते। आप नहीं, आप मुकम्मल कर लिया तो कामयाब हैं आप, मुकम्मल कर लिया तो नूर हैं आप, मुकम्मल कर लिया तो बरकत को पा लिया आपने, मुकम्मल कर लिया तो उम्मीद को मुकम्मल कर लिया आपने। फिर यहां से मायूसी क्यों? पहले से मायूसी क्यों? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह आपके हिफ्ज की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपके कुरान की हिफाजत करेंगे। ऐ अल्लाह, अल्लाह से लड़ो जी, अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह तेरे कलाम को मैंने दिल में बसाया है, अब इसकी हिफाजत करना तेरे जिम्मे है, और ऐसा रास्ता फराहम कर कि मैं कुरान पे बाकी रहूं, कुरान पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं। मैंने कहा अगर इखलास हो तो अल्लाह रिवीजन की तौफीक देते हैं, इखलास ना होना अल्लाह रिवीजन छीन लेते हैं। 10th +2 खत्म करके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते उमराबाद में पढ़ाई के लिए, हाफिज कुरान होते, 2-3 साल पहले हिफ्ज मुकम्मल किए होते। पूछते हम, ऐ मेरे भाई क्या आप करते हैं रोजाना? नहीं मौलाना, बहुत मसरूफ हो गए हम। याद रखो अल्लाह के बंदो, तौफीक बहुत बड़ी नियामत होती है, याद रखो आप, तौफीक बहुत बड़ी नियामत होती है। हमेशा मांगना, कभी आप हिफ्ज के रास्ते में कदम रखते मौका ही नहीं मिलता आपको, बहुत मसरूफ हो जाते आप। अल्लाह से मांगना, ऐ अल्लाह तेरी किताब के लिए वक्त निकालने की मुझे तौफीक दे। अल्लाह अकबर, रोजाना वक्त मिलेगा इंशाल्लाह आपको। और हम समझते हैं अभी जिस शौक और जज्बे की बात हमने की, इस सिलसिले में हमारे अपने पास मदरसे फातिमा है शहर परनम्बट में, वहां अल्हम्दुलिल्लाह वीकली वंस हम पढ़ाते हैं हमारी मुअज्जज तालिबात को। वहां हमने अपनी तालिबात में प्रैक्टिकल देखा, वल्लाही लॉकडाउन के आसपास हमने अपनी तालिबात को मोटिवेट करना शुरू किया क्लास में, हमने अपनी तालिबात को मोटिवेट करना शुरू किया। उसका फायदा यह हुआ कि आज मदरसे फातिमा जो 1 साल दीनी कोर्स है, तालिबात रगबत से 2nd और 3rd ईयर में आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे में कोई हिफ्ज का शोबा नहीं, फिर भी 9 तालिबात ने अपना सफर हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, और भी बहुत सारी तालिबात हैं जो बिल्कुल यानी करीबुल खत्म है। कैसे जज्बा हुआ? हमने तब जाना, अपनी जिंदगी को सामने रखकर और इन तालिबात की जिंदगी को सामने रखकर, सच्चा शौक और सच्ची मेहनत हो, ये मरहला आसानी से पार कर सकते हैं हम। दिन ब दिन शौक में इजाफा होना, हमारे शौक को हम बूस्ट देते रहना। हमारा मसला क्या है मालूम? जैसे अल्लाह, जैसे ईमान के बारे में कहा गया, अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है घटता भी है, हमारा शौक भी वैसा ही है। आज बड़ा जज्बा शौक रहता, आज ही हम सोचते कि चलिए आज हम हाफिज बन जाएंगे, लेकिन सुबहान अल्लाह हालात ऐसे होते, हम उस माहौल के रंग में ऐसे रंग जाते कि बाद में वो इरादा ही हम तर्क कर देते, जज्बा मांद पड़ जाता, शौक कम हो जाता।
دلچسپی کم ہو جاتی. نہیں, ہر آنے والی صبح پچھلی صبح سے بہتر ہونا. یہ نوٹ کرو, نمبر 6, ہر آنے والی صبح پچھلی صبح سے بہتر رہنا. ہر آنے والا دن ہمارا جذبہ پچھلے دن کے جذبے سے بہتر رہنا. اگر ایسی کوشش کریں گے نا آپ, واللہ حفظ قرآن کا مرحلہ بہت آسان ہے. اور ایک اہم بات, نمبر 7 نوٹ کیجئے, جہاں آپ صحیح وقت کا انتخاب کریں گے اور ہر آنے والے دن پچھلے دن سے بہتر بنائیں گے, وہیں پر ایک اہم بات ہے حفظ قرآن کو آسان بنانے کے لیے کہ ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے. اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو آپ ڈیگریڈ مت کیجئے. بعض لوگ موٹیویٹ کرتے ہی نہیں. آپ جا کے کہیں نا کہ امی ابو میرے 2 پارے ہو گئے, نظر انداز کر دیں گے, سن کر بھی انسنی کر دیں گے. آپ کا نظر انداز کرنا, آپ کا انسنی کرنا بچے پر بہت شاخ گزرتا ہے, بچی پر بہت شاخ گزرتا ہے. ماں باپ کے چہرے پہ مسکان آئے, ماں باپ اگر خوش ہو, ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کے مسکان سے اللہ اکبر بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. آج ماں باپ کو سبحان اللہ صرف مارنا آتا ہے, ڈانٹنا آتا ہے, جھڑکنا آتا ہے. معاف کرنا, ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے اس میں. آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے, آج صرف غلطیاں ڈھونڈتے اپنے بچوں میں, ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں نا ہم اسے نظر انداز کر دیتے. واللہ ماں باپ کا ایک جملہ, استاذ کا ایک جملہ بچے کو کھڑا کر دے گا, بچے کے مستقبل کو بنا دے گا, اس کے حوصلوں کو بڑھا دے گا, کامیاب طالب علم بنائے گا. ماں باپ اور استاذ کا ایک جملہ. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک موٹیویشن کا ماحول بنائیے اپنے گھر میں. اپنے اساتذہ سے بھی اپیل کروں گا. اساتذہ کیا کرتے ہیں, ہمیشہ بچوں کو ڈانٹتے. نہیں, آپ بچوں میں بھلائی تلاش کیجئے, اس بھلائی کو لے کر آپ ان کے ساتھ گفتگو کیجئے, واللہ وہاں سے ان کی شخصیت نکھرے گی. یہ دور ایسا ہے نا, اس دور میں زیادہ جو ہے پازیٹیو سوچ کو پھیلانا ہے ہمیں. اسی لیے میں یہاں پر اگر ذمہ دار ہیں, سرپرست حضرات ہیں, معلمین ہیں, معلمات ہیں, حضرات اساتذہ ہیں, تو 7 پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا. تب چل کر ہم کیا کر سکتے ہیں, ایسے کار خیر حفظ قرآن میں آگے بڑھ سکتے ہیں ہم. کبھی کبھار کیا ہوتا, آپ ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہتے, کوئی بندہ آپ کے جذبے کو زمین میں دفن کر دیتا, ایسے ایسے واقعات سناتا کہ آپ کا دل دیکھ جاتا. آپ سمجھتے کہ نہیں بھائی یہ کرنا بہت مشکل ہے. نہیں, یو کین ڈو, آپ کر سکتے ہیں. یو کانٹ ڈو اسے ڈیلیٹ کیجیے, آپ اپنی زندگی سے یو کانٹ ڈو ڈیلیٹ کیجیے, گرچہ وہ ہماری ڈکشنری میں ہو. ہماری زندگی کے ڈکشنری میں یو کانٹ ڈو نہیں ہونا چاہیے, یو کین ڈو ہونا چاہیے. اور آئی کین ڈو, یو کین ڈو, میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کیجیے. جب تک ایسا ماحول قائم نہیں کریں گے نا, حفظ میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم. اور ایک اہم بات, نمبر 8, حفظ میں دونوں پہ فوکس کرنا. آپ بعض طلبہ جو ہے نئے سبق میں ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کرتے, روزانہ جو ہے 4 پیج 5 پیج پڑھتے جاتے, ریویژن بالکل صفر. بالکل غلط ہے یہ, کیونکہ ابتدائی مرحلے میں بہت آپ کو محنت کرنی ہے, نئے سبق میں بھی اور پرانے سبق میں بھی, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا. میں ہمیشہ جو ہے اس کو ایک مارک دیتا ہوں میں کہ آپ 60% نئے سبق پہ توجہ دیجئے اور 40% جو ہے ریویژن پہ توجہ دیجئے. آپ کی محنت 2 حصوں میں تقسیم ہونا, محنت کا 60% نئے سبق پر اور محنت کا 40% جو ہے ریویژن پہ ہونا چاہیے. آپ اسے نوٹ کر کے دیکھو آپ, کیونکہ بعض طلبہ کیا ہے, گھبرا کر کیا کرتے, 5 پارے پڑھ کر خالی ریویژن کرتے رہتے. نقصان کیا ہوتا, ان کا حوصلہ پست ہو جاتا, آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا, پھر حافظ بننے کا ارادہ ہی چھوڑ دیتے. اسی لیے کوئی دن نیا سبق نہیں چھوٹنا.
اللہ है कि आपकी छुट्टी है जुमा के दिन या संडे के दिन, उसे छोड़कर बकिया कोई भी दिन आपका नया सबक नहीं छूटना, वहीं पर आपका रिवीजन भी नहीं छूटना। हाँ माशाल्लाह आपके 15 पारे हो गए, 20 पारे हो गए, 22 पारे हो गए, वहां क्या करना, आप देखना आपका जो है रिवीजन कैसा है। अगर पुख्ता है तो यही लेकर आगे बढ़ो, 60% नया सबक, 40% पुराना सबक। नहीं रिवीजन कच्चा है, आपको डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, आप बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप बदला दो इसे। नए सबक पर 40%, रिवीजन पर 60%। ये कब? खूब आगे बढ़ने के बाद, 10 पारे, 15 पारे, 20 पारे होने के बाद। लेकिन शुरुआत ही में हमारे पास तलबा क्या करते, 1-2 पारे याद करके 2 महीना गैप देते, सिर्फ रिवीजन करते रहते। नुकसान क्या होता है, नया सबक याद करने का हौसला खत्म हो जाता। इसीलिए हम 8वां पॉइंट जो जिक्र कर रहे हैं, अपनी मेहनत को तकसीम कीजिए, अपनी मेहनत को तकसीम कीजिए। 40% आप रिवीजन पे तवज्जो दीजिए और 60% आप नए सबक पे तवज्जो दीजिए। ये दोनों सफर चलता रहे, रिवीजन का सफर भी चलता रहे और आपके हिफ्ज का सफर भी चलता रहे, नया सबक का सफर भी चलता रहे। और 9वीं बात, 9th पॉइंट ये कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों में जो सूरतें याद की वो पढ़ना। कैसे? मसलन आप माशाअल्लाह जो है सूरह मुल्क याद कर लिए, सूरह कलम याद कर लिए, सूरह कौफ याद कर लिए। अब कोशिश करना कि जब भी आप सुन्नत पढ़े उसे रिवीजन करो आप, ठीक है ना? अब हमारे यहां पर क्या है, मदारिस में मशहूर है, बाज सूरतें बहुत मुश्किल हैं, जैसे सूरह शुरा, सूरह शूरा, सूरह आराफ। तो उसको हमने क्या किया, रोजाना जोहर की नमाज के बाद जो सुन्नत पढ़ते हैं ना, माफ करना मैंने कहा ना कि ये बस आपको हिम्मत अफजाई के लिए, उस सुन्नत वाली नमाज में तकरीबन जो है पहली रकात में बहु पारा, दूसरी रकात में बहु पारा के करीब ऐसी सूरतें पढ़ते थे हम। जो मुश्किल सूरतें लोग कहते हैं ना, उसे हम पढ़ते थे। उसका फायदा क्या होता था, मुख्तसर सी मुद्दत में लगातार पढ़ने की वजह से वो मुश्किल सूरतें आसान हो जाती। जरूरत पड़ने पर आप मोबाइल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे थे, आपको शक हो गया, मोबाइल को आप स्क्रीन पे कुरान रख लो, ऐसा देख लो। इतनी छोटी हरकत कर सकते हैं आप नमाज में, अल हरका अल खफीफा, नमाज में छोटी हरकत कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन वल्लाही पढ़ के देखो आप, रिवीजन करके देखो आप, नमाज में, सुन्नत नमाजों में, नफिल नमाजों में बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और आखिरी बात यह है, 10वां पॉइंट ये है, 10वां पॉइंट ये है, आखिरी बात, अल्लाह जाखिर दे। माशाल्लाह बहुत देर से आप लोग हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जाखिर दे आप तमाम को। कि 10वां पॉइंट ये है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांग के देखो आप, कौन सी सूरत मुश्किल है, नाम लेकर मांगो। ए अल्लाह, मैं सूरह निसा याद, हम याद कर रहे हैं, सूरह निसा याद नहीं हो रही है अल्लाह, इस सूरह निसा को मेरे लिए आसान कर दे, इस सूरह निसा को मेरे दिल में उतार दे, इस सूरह निसा की हर आयत को अच्छी तरह से याद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से मांग के देखो, एक एक सूरत इंशाल्लाह आपके लिए आसान होती जाएगी इंशाल्लाह। कभी गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, कभी आप 2 रकात पढ़ के नमाज के सजदे में अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग के देखो, उठने से पहले आप हाफिज कुरान की फहरिस्त में आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। 2 सजदे हमें हाफिज बना सकते हैं इंशाल्लाह। नमाज अलग से सजदा करके दुआ नहीं करना, अलग से सजदा करके दुआ करना बिदत है। नमाज के सजदे में दुआ करना इंशाल्लाह, अपनी जबान में दुआ कीजिए इंशाल्लाह। ए अल्लाह मुझे हाफिज बना दे, ए अल्लाह मुझे तेरी किताब को मेरे सीने में बसाने की तौफीक दे दे। आपके जो जुमले होते ना, अल्लाह के पास बहुत माना रखते हैं, बहुत माना रखते, बहुत माना रखते हैं। ऐसा भी कुछ करके देखो, हिफ्स की लज्जत आएगी इंशाल्लाह आपको। वल्लाही आज के दौर में मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, हज़रात व ख़वातीन,
कुरानी माहौल कायम करना बहुत जरूरी है आज। इसी कुरान से हम अपने जहन को बचा सकते हैं, इसी कुरान से हम अपने ईमान को जिंदा कर सकते हैं, इसी कुरान से हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं, इसी कुरान से हम माहौल को बना सकते हैं, इसी कुरान से हम गुनाहों से दूर रह सकते हैं, इसी कुरान से हम अपने रब को मना सकते हैं, इसी कुरान से हम अपनी जन्नत बना सकते हैं, इसी कुरान से हम घर की नहुसतों को खत्म कर सकते हैं, इसी कुरान से हम दिली अमराज को मिटा सकते हैं, इसी कुरान से हम अपने दिल को मुनव्वर कर सकते हैं, इसी कुरान से हम हर किस्म की बुराई और फितने से खुद को बचा सकते हैं, इसी कुरान से हम इसी कुरान से हम आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल ले सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, इस कुरान पे तवज्जो देना इंशाअल्लाह। इस मजलिस को कायम करने का मकसद कुरानी हलके से जुड़ना इंशाअल्लाह। हम आजकल कितनी सहूलत है देखो, आजकल कितनी सहूलत है देखो, आज घर बैठे बैठे हाफिज और हाफिजा बन सकते हैं आप। कितनी बड़ी बात है ना ये। घर बैठे बैठे हाफिज और हाफिजा बन सकते हैं आप। एक दौर में उस्ताद के पास जाना था, मुअल्लिमा के पास जाना था, लेकिन लॉकडाउन के आसपास से माशाअल्लाह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अल्लाह नजर बस से बचाए, हम अपनी जगह, आप अपनी जगह, लेकिन सब बैठकर कुरान पे फिक्र कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह बैठकर कुरान पे गौर कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह बैठकर हाफिज कुरान बनने की तड़प रख रहे हैं। कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नियामत है। आपके और हमारे दरमियान हजारों मील की मसाफत से ही कुरान ने मेरे और आपके दिल को करीब किया है, मेरे और आपके ताल्लुकात को मजबूत और ईमानी ताल्लुकात बनाया है। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन, तलबा और तालिबात, आप ऑनलाइन हलका से फायदा उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अहद प्लेटफॉर्म की जानिब से भी कुरान का मुबारक सिलसिला शुरू हो रहा है। एक मुनासिब मिकदार, बहुत सोच कर, बहुत माशाअल्लाह गौर फिक्र करके हमने एक तजवीज दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप तमाम से हम दरख्वास्त करते हैं, कुरानी सोच लेकर उठें, कुरानी सोच लेकर उठें, कुरानी माहौल हम कायम करेंगे, हुफ्फाज और हाफिजात को हम बढ़ाएंगे, हिफ्ज़ कुरान में हम सपोर्ट करेंगे, कुरानी माहौल हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम पर रहम करम का मामला फरमाए। कुरान मजीद के मरहले को अल्लाह आप तमाम के हक में आसान कर दे। अल्लाह आप तमाम के सीनों को कुरान के लिए खोल दे। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी से अल्लाह आप तमाम को दूर रखे। अल्लाह ताला हर भलाई को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जहां जहां मुश्किलात महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप तमाम की मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह आपके घरों में चैन के फैसले फरमाए, बरकतों के फैसले फरमाए, आफियत के फैसले फरमाए। जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला सबके हक में अमन और आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हम तमाम को हर अच्छी बात को अपनाने, हर कार्य खैर में हिस्सा लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान पर बाकी रखे, अल्लाह कुरान पर खातिमा नसीब फरमाए। आप तमाम तलबा और तालिबात जो मुस्तकबिल में हाफिज और हाफिजा बनना चाहते हैं, अभी हम मुबारकबाद देते हैं। अय मुस्तकबिल के हाफिजात, अय मुस्तकबिल के हुफ्फाज, कुरान मजीद का हिफ्ज मुबारक हो आपको, कुरान मजीद का हिफ्ज मुबारक हो आपको। कदम रख दिया है, मंजिल पे पहुंचना यकीनी है इंशाअल्लाह। कदम रख दिया है, हाफिज कुरान और हाफिजा बनना यकीनी है। इस नेक जज्बे से इंशाअल्लाह आगे बढ़िए। मैं जो मुखातब हुआ हूं, हमारे मुस्तकबिल के हुफ्फाज से मुखातब हुआ हूं, मुस्तकबिल की हाफिजा से मुखातब हुआ हूं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। सबका शुक्रिया, जजाकुमुल्लाहु खैरा व शुक्रन। आखिर में एक और मर्तबा आखिर में एक और मर्तबा अहद की जानिब से आए हुए तमाम हजरात का, तमाम खवातीन का, तमाम तलबा और तालिबात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको कुरान से जोड़ दे, कुरान से जोड़ दे, कुरान से जोड़ दे, कुरान से जुड़ना आसान कर दे, कुरान से जुड़ना आसान कर दे। इसी पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। शुक्रन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आखिर में एक दरखास्त है, जिन लोगों ने जो पॉइंट्स नोट किया होगा, उनसे गुजारिश है वो हमारे जिम्मेदार को आप सेंड कीजिएगा, ताकि वो पॉइंट्स इंशाअल्लाह हमारे तमाम अहबाब को इंशाअल्लाह ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम व शुक्रन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।